सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ है नमन भल्ला सर। नमन भल्ला सर इस समय स्केलर में एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं और आज वो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को पूरे कॉलेज लाइफ के और एज एन जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल में काम कर चुके हैं उसके एक्सपीरियंस आज हमारे शेयर करने वाले हैं। तो सर हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। Yeah, hello everyone. Nice to meet you all, and nice to be a part of this particular podcast by Abhay. So yeah, thanks Abhay for inviting me to this. Okay, so about myself, I'm currently working at Scalar as an instructor, as a into product management and in founder's office. So currently I'm leading a new vertical at Scalar, which is Scalar Topics, where we are trying to build a place for very, very high quality technical content for software engineering students, for software engineers, and also computer science students, as I mentioned. Prior to Scalar, I was a software engineer at Google. I spent around 1 year there. And before that, I have also done multiple software engineering internships at some startups, Shipsy, PureFit, and so on. I like basically delving into the domain of software engineering, learning different tools, frameworks, trying to understand how computers work, delving deep into their working, etc., etc. So yeah, that's primarily about me. Yeah. तो सर आपने बताया इस समय स्केलर में एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो आप करंटली स्केलर में किस टाइप की इश्यूज को टारगेट करते हैं, क्या आपकी बेसिक वर्किंग प्रोफाइल है, वो थोड़ा सा बताइए हम। तो यार स्केलर में ऐसे रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नहीं है, जस्ट टू क्लैरिफाई हियर। तो मेरा रोल इज मोर इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्लस क्या कहते हैं इंस्ट्रक्टर. So basically, apparently the role is in founder's office. So basically, which includes multiple things, right? For example, you basically lead a vertical from scratch, and you have to work with different stakeholders, be it marketing, be it your tech, obviously, be it your product team, etc., to ensure that the final product that comes with the problem statement that you are trying to solve is a very refined product, is a very great quality product, right? So it's not exactly a software engineer role. Coding utna nahi karte. Matlab, for coding, I love actually coding. So basically, I keep on doing side projects for that particular thing and just working with some friends, startups, etc., to just ensure that, okay, I'm into the domain of programming. But at Scalar, my role is more about product management, doing user research, trying to understand what people need, how to working with different teams to ensure to build a product that people love, that also solves business problems and creates an impact in the space. So yeah, that is the kind of thing. So Scalar का aim ही ये है कि try to basically create a impact in the software engineering learning ecosystem that are students. तो basically Scalar में भी जो हम चीज करते हैं ना, हम चार चीजें दिमाग में रखते हैं. एक तो पहली बात, whatever we teach should be very highly structured, बिकॉज कंटेंट तो यार अवेलेबल है. मतलब आप कंटेंट देखोगे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, कंटेंट देखोगे आपको मल्टीपल अदर रिटन वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगा, मल्टीपल पेड कोर्सेज भी है, बट ना स्ट्रक्चर मिसिंग है. एक बच्चे को जो वो या एक इवन प्रोफेशनल को व्हेन दे स्टार्ट लर्निंग थिंग दे फाइंड डिफिकल्ट कि क्या क्या पढ़ना है मुझे. अच्छा, मुझे स्टैक्स पढ़नी है, उसके मुझे लिंक लिस्ट पढ़नी है, उसके मुझे क्यूज पढ़ना है. ये हाँ यहाँ इशू आ जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर, बिकॉज लोगों को अगर एक स्ट्रक्चर हो जाता है, एक डायरेक्शन हो जाती है ना, तो आधी चीजें सॉल्व हो जाती हैं. Then the second thing is it should be very high quality. Okay, you have a lot of content available, but quality is the problem statement. Okay, हर जगह पे आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती, हर जगह पे आपको एक ऑथराइज क्वालिटी नहीं मिलती कि यार हाँ ये चीज पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ. तो बहुत बच्चों से जब मैं पूछता हूँ ना कि आपने कुछ पढ़ा तो आपको ट्रस्ट कितना है उस पर, तो वो कहते हैं कि आप पढ़ तो लिया है, मतलब लेकिन नॉट श्योर किया मुझे कितना ट्रस्ट है कि हाँ यार मुझे सब कुछ आ गया होगा. तभी बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार अलग अलग वेबसाइट से देखते हैं, पहले यूट्यूब से कुछ पढ़ा, फिर उसको कहीं और पढ़ेंगे, फिर उसको कहीं पढ़ेंगे. क्यों? वो ट्रस्ट मिसिंग है ना. तो स्ट्रक्चर हो गया, देन क्वालिटी हो गया, देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना यार, इट इज कि बाय पीपल हु हैव डन दिस स्टफ. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कुछ पढ़ा हुआ है ना, या मैंने किसी चीज पे काम किया हुआ है, तो मैं जब वो चीज पढ़ाऊंगा जिसपे मैंने काम किया हुआ है खुद, जिसको मैंने खुद सालों से यूज कर रहा हूँ, तो the way I will try to build an intuition or the way I will try to teach that topic will be different from someone who has just learned that, who just has a theoretical understanding of that. तो एक मास लेवल पे आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो. हाँ, yes, obviously, मतलब एक अगर आपको जो प्रोडक्ट बनाना होता है नॉर्मली, so there are multiple teams that are involved, right? For example, if you have to build a thing that is going to be used by a lot of students, by a lot of professionals, you first need to structure your thoughts कि आपको बनाना क्या है ना, कि मतलब what is the exact problem. तो जैसे मैंने जो प्रॉब्लम बताई वो वही थी कि कंटेंट मिसिंग है, right? But when you have to
solve that particular problem, it is always never an individual effort. Okay, so multiple teams are involved, multiple teams have different ownerships, right? They try to solve a different problem statement. For example, tech या प्रोडक्ट की एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी कि एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट? कंटेंट अच्छा हो लेकिन वो एक खराब एक्सपीरियंस में हो, डजंट मैटर, राइट? लोगों को द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन इज एक्सपीरियंस दैट दे सी, राइट? कितना स्मूथ एक्सपीरियंस है, किस टाइप का यूजर इंटरफेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा. So yeah, that is basically the kind of thing that we are trying to see. We are work very have a very focused approach, have multiple teams, and have a very clear path here to create something that basically people love, that the software engineers and computer scientists of future love. Yeah. Yes, sir. Nice. सर आपने इंटर्नशिप की हुई है सिप्सी, क्योरफिट और कल्ट गियर जैसी कंपनीज में, तो क्या आपकी अप्रोच रही है, क्या वहां पर एक्सपीरियंस रहे हैं, वो तो शेयर कीजिए हमारे साथ. तो यार क्योरफिट का बताता हूँ. उस समय एक्चुअली क्योरफिट एंड कल्ट गियर दो अलग अलग कंपनियां नहीं है. तो कल्ट गियर ना क्योरफिट का ही एक पार्ट है, ठीक है. तो इंजीनियरिंग टीम सेम रहती है. तो बेसिकली मैंने 2 बार शिप्सी में इंटर्नशिप की है और 1 बार क्योरफिट में इंटर्नशिप की है. तो उस समय वो क्योरफिट कल्ट गियर था. तो कल्ट गियर एट क्योरफिट इज द प्लेस वेयर आई हैड डन इंटर्नशिप. तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यार. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी मैंने स्टार्टअप्स में काम किया है ना, बी इट क्योरफिट, बी इट योर शिप्सी और इवन बी इट स्केलर, जब मैंने स्केलर इनिशियली ज्वाइन किया था, तो ये सब स्टार्टअप्स बहुत छोटी स्टेज पे थी. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक व्हेन आई जॉइंड शिप्सी, आई रिमेम्बर वो एक ही फ्लोर पे काम करते थे. एक फ्लोर पे 3 रूम थे, 3 बेडरूम या 3-4 बेडरूम BHK हाउस था. और वहां पे सारे लोग काम करते थे. आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोगों की इंजीनियरिंग टीम थी. शायद उनका पहला इंटर्न मैं ही था. मतलब एज फार एज आई नो, आई वाज द फर्स्ट इंटर्न ऑफ शिप्सी. कल्ट गियर का भी शायद मैं सेकंड ही इंटर्न था, फर्स्ट या सेकंड इंटर्न था कल्ट गियर का भी. तो एक तो बहुत अच्छा जो एक्सपीरियंस था ना, वर्किंग फ्रॉम स्टार्टअप्स ऑफ द वेरी अर्ली स्टेज. मतलब दोनों में, मतलब शिप्सी में तो बहुत ज्यादा आई डायरेक्टली गॉट अ चांस टू वर्क विद द फाउंडर्स. तो मैंने शिप्सी में 2 बार इंटर्नशिप की थी. पहली बार when I started the intern, I was always interacting directly with a lot of time I was interacting with the founders and understanding the problem statements जो वो सोचते हैं, right? How do they think about that? How do they think about the product? And see, when you start a company, from what I see from the startups founders के mindset से, there are a lot of things that keep going on, right? For example, you have to think multiple product ideas. आपको मतलब multiple problem statements होती हैं. तो one thing was कि working directly with founders at Shipsy was a very very great experience. Okay, the second thing that happens is at Shipsy, so as the engineering team was very less, you have a lot of scope to create an impact, or basically a lot of ownership that you can get. For example, उस समय I think Android app पे मैंने इनका काम किया था Shipsy के, and I think it was very good learning experience. बहुत ज़्यादा मतलब I think चीजें सीखी, multi-threading performance improvements learned at that particular time. So yeah, learned Android development, learned, I think so. एक उसमें project बड़ी randomly हो गया था because I was working with founders at that particular time. तो एक कुछ idea आया उसी समय, तो we basically built a क्या कहते हैं a machine learning bot using Dialogflow etc. to solve the problem statement very fast. तो बहुत चीजें सीखने को मिली. Basically Android development सीखने को मिली उस time पे. आपको Dialogflow वगैरह वेब फ्रेमवर्क से काम करने सीखने को मिला. I think Flask वगैरह भी उस समय पहली बार यूज किया था. तो हाँ, वो जो 3-4 महीने की इंटर्नशिप थी उसमें बहुत बहुत ज्यादा सीखने को मिला. एंड ऑल्सो पता चला कि ओके, इफ यू टेक ओनरशिप, राइट, एंड इफ यू शो ईगरनेस टू लर्न एंड be responsible for something, people are always happy to give you an ownership, and people always welcome you that okay, yes, if you want to own something and if you want to create an impact, people are always happy to give you that particular responsibility. So one of the first learnings that I had there was that their ownership is never given to you. I think you have to take ownership. You have to show that यार ये चीज मैं कर सकता हूँ. You have to ask for it. You have to show यार ये this is how why I can do it, and then you have to do it. ठीक है, जब आप करोगे ना तो लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा. Okay, and then when the trust starts building up, people are more happy and people are more comfortable to accept your request and to ensure that yes, you have a very comfortable stay and you get to work on the things where you feel that you can create an impact. तो ये था शिप्सी का.
CureFit में I was working more in backend. So CureFit में it was also a very small team in the one that I was working at. It was a team of only I think 4 people, 1 on front end and 3 on backend. And there I got to work. The tech stack that I worked upon was Spring Boot, and obviously it was a very large scale distributed system. We were trying to build something that was supposed to be used by millions of users every time, and it was a very data intensive system. So learned a lot about system design, large scale distributed systems, scaling the systems, worked with multiple multiple layers of a software system, and across the whole thing, basically from the implementation to the deployment to the scaling part to performance evaluation to load testing. Worked upon a lot of things. For example, if I just talk about tools and frameworks that we had used at that particular time, we had used Spring Boot as the web framework. The system that we were building actually had to use 3 databases. One was PostgreSQL, one was MongoDB, and another was a timescale DB, which is also, I mean, like, to be very honest, not different from Postgre. It is timescale DB is basically built upon Postgre. Then we had to use caches. We used Redis for that, and because it was a very large scale system, obviously it was an event driven system. So used Kafka, SNS. So बहुत ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला. प्योरफिट में एक बहुत बड़े डाइवर्स टेक स्टैक पे काम करने को मिला. तो सर ये पूछना चाहूंगा, अपने कॉलेज डेज के कौन से ईयर से स्टार्ट कर दिया कि हाँ मुझे अब इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करना, क्रैक करनी इंटर्नशिप अच्छी सी, वो कौन सा ईयर था? यार एज सच ना, मतलब कभी कोई ऐसा नहीं था कि यार आज से मैंने कहा कि यार आज से इंटर्नशिप की तैयारी शुरू करनी है. आई पर्सनली फील कि आई लव लर्निंग अबाउट टेक a lot. I very much like reading about software systems. I like learning technical tools, frameworks, programming languages, etc. तो उस समय ना, मतलब मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में चला गया था. व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर. ठीक है, तो सेकंड ईयर में जब मैं था तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा डेटा साइंस मशीन लर्निंग में चला गया था. तो उस समय मैंने ना कोर्सेरा के कोर्सेज भी किए थे, और स्टैनफोर्ड के ना जो असली क्लासेस में कोर्सेज होते हैं उनकी वीडियोस उस समय बाहर अवेलेबल होने लगी थी. मतलब स्टैनफोर्ड स्टार्टेड पब्लिकली मेकिंग दोस वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब एटसेट्रा. तो वो कोर्सेज में मुझे करने में मुझे बहुत मजा आने लग गया था डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में. तो आई स्टार्टेड डूइंग दोस पर्टिकुलर थिंग्स. तो हमारे कॉलेज का क्या था यार, सेकेंड ईयर के बाद वी हैड अ मैंडेटरी इंटर्नशिप. तो कॉलेज हैड अ मैंडेटरी थिंग कि यार यू हैव टू डू एन इंटर्नशिप आफ्टर सेकेंड ईयर. तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यार कैसे इंटर्नशिप लूंगा, बट मुझे आइडिया था कि यार मुझे चीजें आती है तो कुछ तो कर लेंगे. ओके, तो अराउंड Feb of 2018, I think, when I was in second year and second year के second half में, I thought कि यार अब इंटर्नशिप का देखते हैं कि कैसे लेनी है इंटर्नशिप. ओके, एंड आई हैड एन आइडिया कि यार कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, Tier-3 कॉलेज है. तो और गूगल वगैरह के लिए लेट हो गए थे. गूगल वगैरह में आई थिंक इंटर्नशिप वगैरह अगर आपको अप्लाई करनी होती है ना, तो इट हैज टू हैपन इन द अक्टूबर ऑफ द लास्ट ईयर, अक्टूबर और नवंबर ऑफ लास्ट ईयर. ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि यार बेस्ट ऑप्शन स्टार्टअप्स ही है. मतलब लेट अस स्टार्ट विद अ स्टार्टअप कि शायद दे विल बी एबल टू टेक मोर रिस्क एंड दे विल बी एबल टू गिव मोर अपॉर्चुनिटी. तो मैंने अराउंड फेब इंटर्नशिप ढूंढना शुरू किया था. तो हाउ आई डिड दैट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट. मुझे लिंक्डइन वगैरह से कॉल्स नहीं आ रही थी, करियर पेज से नहीं आ रहा था. तो आई थॉट द बेस्ट आइडिया इज टू रीच आउट टू द फाउंडर्स देमसेल्व्स, बिकॉज स्टार्टअप के फाउंडर्स आर ऑफन वेरी हैप्पी taking you in if you show the eagerness to learn, if you show the eagerness to contribute to their startup, etc. So there is a website called angel.co, AngelList. तो उस पे मैंने अपना वेबसाइट अपना अकाउंट बनाया था अराउंड जैन ऑफ 2018. तो मैंने सिंपल चीज रखी, मुझे ज्यादा पता नहीं था. तो मैं जॉब सेक्शन पे गया, मैंने अपनी सिटी लिखी. उस समय मैं गुड़गांव के पास था, तो मैंने गुड़गांव लिख दिया सिटी में. और मैंने कहा जो भी स्टार्टअप्स है वहां पे, तो उनके मैंने फाउंडर्स को रीच आउट करना शुरू कर दिया विदाउट एनी डिफरेंशिएटर. मैंने कहा कि यार मतलब जिसके बारे में मुझे अच्छा लग रहा था, जिन भी स्टार्टअप्स के बारे में. ठीक है, तो मैंने देखा, मुझे लगा अच्छा है, और जो भी डेटा साइंस या मशीन लर्निंग से रिलेटेड दे रही थी, तो मैंने रीच आउट कर दिया. मैंने कहा कि यार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके बारे में, तो विल यू बी इंटरेस्टेड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. ओके, उस समय आई डिडंट हैव एनी मतलब एज सच फिल्टर कि पैसा कितना दे रही है या वो सब. मतलब didn't matter much to be very honest. उस समय मुझे पता भी था शायद उतना नॉलेज ही नहीं है कि ज्यादा आप डिमांड भी कर सकते हो. तो हाँ, रीच आउट टू फाउंडर्स. आई थिंक उस समय अराउंड मैंने 20 या 25 फाउंडर्स को रीच आउट किया था.
एंड 3 या 4 फाउंडर्स ने रिप्लाई किया था। तो उसमें से शिप्सी वाज द फर्स्ट वन जिससे फाउंडर के साथ बात हुई, इंटरव्यू हुआ, डिस्कशन हुई, दे लाइक्ड इट एंड दे गिव एन ऑफर। तो उसमें एक्चुअली इंटर्नशिप मेरी स्टार्ट पहले ही हो गई थी, इवन बिफोर जून। तो उन्होंने कहा था कि यार अभी से आप वर्चुअल करनी होम से शुरू कर दो। उस समय मैं उतना ज्यादा काम होम वाली वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप में नहीं कर पाया, कॉलेज का काम था, बहुत सब कुछ था। बट उसके बाद उन्होंने फिर ऑफिस में, जब मेरी समर वेकेशन आती थी तब मैंने ऑफिस में जाकर इंटर्नशिप की। उस समय बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आप सीधा टीममेट्स के साथ काम कर रहे थे, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिल रही थी, एंड वही फाउंडर्स के साथ बात करने का सीधा मौका मिला, उनके साथ प्रोजेक्ट सॉल्व किया। तो या ऐसा सा होता है। नाइस सर। सर जैसे आपने मेंशन किया हुआ है कि आपकी सीजीपीए कॉलेज टाइम में 9.57 थी, तो किस तरह से आपने वो मेंटेन कर पाए उस 4 साल की जर्नी में, उसे थोड़ा सा बताइए। हम्म यार मतलब हाँ, मतलब आई एग्री 9.57 साउंड्स, मतलब बहुत, जब कॉलेज के बच्चों से बात करते हो तो इट साउंड्स की 9 पॉइंटर है, तो इस टाइप का है। बट मतलब, तो यार मैं अपना बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड अ हैबिट, आई लव रीडिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, तो मतलब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एज वेल, तो जो भी ना कॉलेज में पढ़ाया जाता था, तो I used to read a lot about those particular concepts from external website. Like मेरी हैबिट थी कि whichever course is a part of the curriculum for that particular semester, मैं ना उसके alternatives स्टैनफोर्ड के या सीएमयू के या एमआईटी ओपन कोर्स वेयर पे जो भी मिलते थे, आई यूज्ड टू फाइंड देम कि कहीं से मुझे वीडियो कोर्स मिल जाए उसका, एंड आई आल्सो ट्राई टू कंप्लीट दैट कोर्स। मुझे पढ़ने में मजा आता है, मतलब काइंड ऑफ साउंड्स वियर्ड, बट हाँ मुझे पढ़ने में मजा आता है। आई डोंट लाइक सीइंग नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, मुझे पता नहीं, मजा आता है, ठीक है। तो सो बेसिकली आई थिंक दैट हेल्प। बेसिकली फॉर एग्जांपल, लाइक अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करूं, तो मैंने उसके साथ साथ स्टैनफोर्ड का डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स किया था, मैंने एमआईटी ओपन कोर्सवेयर का डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स किया था। एंड कॉलेज की पढ़ाई में उतना नहीं करता था कॉलेज के टाइम में, मतलब जो क्लासेस होती थी, ड्यूरिंग द क्लासेस आई डेफिनेटली यूज्ड टू बी अ लॉट attentive to it, but other than that not, other than that मैं कॉलेज का उतना नहीं पढ़ता था। मैं उन्हीं चीजों को अदर वेबसाइट से या बाकी यूनिवर्सिटी से कोर्सेज को करने का ट्राई करता था। मेरा हमेशा से फोकस ये होता था कि यार कंसेप्ट्स का कोई उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, बट फंडामेंटल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। तो आई ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर कि मेरे फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो, कि कोई चीजें वैसे ही काम क्यों कर रही हैं। Okay, not just know about how, but also know about why. Why is something working the way that is? Because if you know about whys, right, कि why is something happening इस तरीके से, why is something happening किसी और तरीके से, then it becomes very easy to figure out hows। ठीक है, अगर आपको why पता है ना, आप हाउस फिगर आउट कर लोगे। मतलब इट्स मोर अबाउट योर मेंटल मॉडल्स ऑन हाउ टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन में ऐसा कुछ नहीं करता था मैं। एग्जाम्स के वही जो जैसे हर बच्चों का होता है, एक हफ्ते पहले ही मैं पीपीटीज वगैरह पढ़ लेता था, उससे हो जाता था। बट आई थिंक वन ऑफ द रीजन फॉर दैट हैपनिंग वाज आई वाज वेरी अटेंटिव ड्यूरिंग माय classes, and the second thing was over the whole semester I used to do similar courses from ओपन कोर्सवेयर हो गया, या आपका स्टैनफोर्ड के जो कोर्सेज पब्लिकली अवेलेबल है, या सीएमयू पे अवेलेबल है, उन सब से। सो बेसिकली दैट वाज आई थिंक हाउ इट है। नाइस सर। सर मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्या अपने कॉलेज डेज में को करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे जिसने आपको एज अ पर्सन इंप्रूव होने में मदद की, वो थोड़ा सा बताइए। यार मतलब एक तो मैं जैसे बताया कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा रहता, तो मैं को करिकुलम में उतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। एज अ पर्सन आई लाइक बीइंग अलोन, एंड मतलब मुझे उतना घुलना मिलना और क्या कहते हैं, पार्टी शार्टी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसा को करिकुलर में नहीं था मैं, मतलब आई वेरी रेयरली टुक पार्ट इन एनी नॉन टेक इवेंट, या जैसे डांस हो गया, या आपके जो भी क्लब एक्टिविटीज होती रहती हैं उन सब में मैं नहीं था। यस, मैं मतलब हैकेथॉन्स वगैरह में जरूर पार्ट ले लेता था। मतलब लाइक मेरे, अगर आप रिज्यूमे में भी देखोगे, आई थिंक आई डिड टेक पार्ट इन 2 or 3 हैकेथॉन्स, गॉट गुड थिंग। बट हाँ, एज सच नॉन टेक एक्टिविटीज में मेरा उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। नॉन टेक क्लब एक्टिविटीज में आई डिडंट लाइक टू गो देयर। तो कॉलेज में मेरा सिंपल आई थिंक 2-3 फिलोसफीज थी। एक चीज तो ये था कि मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम टू build your, I think, skill set, to build your fundamental skill set। तो मेरा लर्निंग में बहुत फोकस था। सेकंड चीज वाज टू हैव अ वेरी गुड फोकस ऑन हेल्थ। तो उस समय मैं अपना एक हेल्थ पे बड़ा ध्यान रखता था, गोइंग टू जिम्स डेली, एंड
those kind of things. But co-curricular में मेरा उतना कभी इंटरेस्ट नहीं रहा. नाइस सर. सर जैसा आपने बताया कि आप गूगल में प्लेस्ड हुए थे, तो गूगल में प्लेस्ड होने के लिए आपने कब प्रिपरेशन करी और किस तरीके के रिसोर्सेज आपने यूज करे, और रिसोर्सेज को थोड़ा सा मेंशन करें सर. श्योर. तो यार देखो, गूगल के इंटरव्यूज फॉर अ फ्रेशर आर मोस्टली सिर्फ आपके डेटा स्ट्रक्चर के इंटरव्यूज होते हैं. तो गूगल की जो इंटरव्यू प्रोसेस होती है दैट इज, आई थिंक आपके 1 या 2 फोन राउंड होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के. उसके बाद आपके 4 राउंड्स होते हैं ऑन साइट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के, और उसके बाद आपका एक बिहेवियरल राउंड टाइप होता है. ठीक है. तो basically one thing for anyone who is preparing for Google is that, okay, your main focus should be having a very good command on data structures and algorithms. And I will not say just having a command on data structures and algorithms, but having a very good command on your problem solving skills. Problem solving skills are not just having a knowledge of DSA. Problem solving skills is not just DSA, but it includes more things. For example, like your observation skills, your thought process, etc., etc. Okay. So one thing that definitely helped was कि कॉलेज में सेकेंड ईयर में जब आपका डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स होता है, राइट, नॉर्मली सेकेंड ईयर में बच्चों के कॉलेज में डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स होता है. तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वन थिंग हेल्प किया, मैंने वो डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कि सिर्फ कॉलेज से नहीं किया था, मैंने बुक्स भी पढ़ी थी, और मैंने क्या कहते हैं MIT का और एक आई थिंक स्टैनफोर्ड का डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स किया था. ओके. तो उससे मुझे ये हो गया कि मेरी थ्योरी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की अच्छी थी. ओके. इन द सेंस आई हैड a good idea here how stacks work or how your graphs work, how does a particular algorithm work, etc., etc. Okay. But उस समय ना मेरा over the complete college मेरा कभी मन ना algorithm problem solving में नहीं था. I was always into building things, मैं projects बनाता रहता था. I was always into मतलब कॉलेज के पहले 2 साल तो मैं मशीन लर्निंग डेटा साइंस में था. ठीक है. मतलब आज मैं बच्चों को बिल्कुल एडवाइस नहीं करता वो चीज करना कॉलेज के इनिशियल ईयर्स में, बट मेरा ऐसा ही था. उस समय आइडिया नहीं था कोई, मतलब there was no one to tell किया क्या करना चाहिए. तो मतलब मशीन लर्निंग डेटा साइंस स्कूल लगी तो मैंने कहा वही कर लेते हैं. तो कॉलेज के द वेरी फर्स्ट 2 years आई वाज इनटू ML एंड डेटा साइंस. तो उसमें मैं कैगल पे लगा रहता था या बुक्स पढ़ता रहता था ML डेटा साइंस की. फिर उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट्स में ज्यादा मजा आने लग गया. तो आई वाज मोर इनटू मतलब कोई भी नया लैंग्वेज सीख ली, कोई नया फ्रेमवर्क सीख लिया, कोई भी हैकर न्यूज पे कोई नई कूल चीज सीखी तो उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, ऐसा था. ठीक है. तो मेरी DSA की नॉलेज ठीक थी, बट कभी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की थी. लीड कोड पे कभी नहीं सॉल्व किया था, इंटरव्यू बिट पे भी कभी सॉल्व नहीं किया था. मतलब आई थिंक इंटरव्यू बिट पे थोड़ा बहुत सॉल्व किया था, बट लीड कोड कभी नहीं सॉल्व किया था. एंड कोड शेफ कोड फोर्सेस भी ऑलमोस्ट नन थे. मतलब 1-2 बार किया था बट नन ही था. ठीक है. मतलब मुझे उतना कभी मजा नहीं आता था उसमें. तो फिर आई थिंक जब थर्ड ईयर का एंड होने वाला था ना, तब आइडिया तो था कि यार देखो कि आई थिंक जनवरी-फरवरी में हर बच्चे को होने लग जाता है कि भाई कि अगले 6 महीने में प्लेसमेंट शुरू होंगी, तो कुछ तो करना है, राइट. यू हैव टू बी जो भी आपके ड्रीम्स है कि यार मुझे वहां पे जाना है, मुझे वहां पे जाना है. नाउ यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दैट, यार व्हाट इज द डायरेक्शन टुवर्ड्स दैट. ओके. तो उस समय आई थिंक आई स्टार्टेड बीइंग वेरी सीरियस विद माय डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज. उसमें इनिशियली जो मैंने, सॉरी नॉट DSA बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम मैंने उस समय शुरू किया था. तो इनिशियली हाउ आई स्टार्टेड वाज, कुछ बुक्स हैं जो बहुत फेमस हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यूज के लिए. एक तो लाइक क्रैकिंग डिकोडिंग इंटरव्यू हो गई आपकी, एक है एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज. तो मैंने उन 2 बुक्स से स्टार्ट किया था. दैट दोस वर द, मतलब वैसे में मुझे बुक्स पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, तो वो दोस वर द बुक्स दैट आई स्टार्टेड दैट विद. बट इशू ये था कि उनमें उतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी. देयर वर नॉट मेनी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व इन दोस 2 बुक्स. तो उसके बाद एक और इंसिडेंस हुआ कि उसी समय ना इंटरव्यू बिट ने अपनी इंटरव्यू बिट एकेडमी शुरू की थी, जिसका नाम अभी स्केलर एकेडमी है. ओके. तो उस समय अभी तो स्केलर आई थिंक 1+ years ऑफ एक्सपीरियंस के बच्चों के लिए, मतलब 1+ years ऑफ एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, लेकिन उस समय ना वो कॉलेज के 4th ईयर बच्चों के लिए भी था. ठीक है. तो अराउंड द मंथ ऑफ मार्च ऑफ आई थिंक 2019, हाँ 2019, तो उस समय मेल आई थी कि वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ कोर्स लाइक दिस, तो विल यू बी इंटरेस्टेड इन दैट. मुझे लगा कि यार सही है कि साइड में वो भी कर लेंगे और उसमें वो DSA वगैरह पढ़ा ही रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ा रहे हैं, तो मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ओके. तो आई ऑल्सो ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कोर्स. तो इनिशियल उस पर यही था कि वो कोर्स करता रहा. मैं इंटरव्यू एकेडमी का DSA का था उसमें स्टार्टिंग में, तो वहां से भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई. लेकिन उस समय मैंने साथ में, अब मुझे पता था कि मैं कोर्स भी कर रहा हूँ, तो
फुल अच्छे तरीके से मेहनत करने के लिए, तो मैंने साथ में लीड कोड पे भी करना शुरू कर दिया था। तो आई विल से कि आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर्मली इन द मंथ ऑफ मार्च 2019। तो बेसिकली फोर्थ ईयर शुरू होने से 2-3 महीने पहले। एंड सोर्सेज थे, एक तो स्केलर का कोर्स कर रहा था साथ में लीड कोड पे प्रॉब्लम्स कर रहा था। तो ओवर द नेक्स्ट आई थिंक 5-6 months I solved around I think 650-700 problems on lead code. कुछ अराउंड 500-600 प्रॉब्लम्स मैंने आई थिंक इंटरव्यू बिट के कोर्स में भी की होगी, स्केलर एकेडमी में भी सॉल्व की होंगी। एंड उस समय भाई नाउ उस समय मेरा मन इसी में आने लग गया, उस समय मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी बहुत अच्छी लगने लगी। तो फिर मैंने उस समय आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कोड फोर्सेस वगैरह पे भी सॉल्व की थी। तो एंड आई थिंक या दैट वाज फेयर इनफ टू प्रिपेयर फॉर कंपनीज लाइक गूगल। तो हाँ, मतलब अगर आज भी मैं किसी को कहूंगा कि यार हाउ व्हाट शुड बी योर preparation strategy for Google, I will say the very first most important thing is have a very strong foundation of your data structure and algorithmic skills. आपको पता होना चाहिए कोई चीज चलती कैसे है, कोई चीज सिर्फ क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज चलती कैसे है। स्टैक को आप उसी तरीके से यूज क्यों करते हो, व्हाट इज द बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम स्टैक। ओके, स्टैक कैसे काम करता है, डीपी कैसे काम करती है। ओके, यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन स्किल्स। ठीक है, आप विजुअलाइज कर पाओ कि ओके यार ये स्टैक है, इसमें आइटम जा रही है ऐसे। ओके, सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ द थ्योरी। आफ्टर दैट डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मेंटल मॉडल्स होते हैं विच विल गेट डेवलप्ड व्हेन यू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर। ओके, तो उसके लिए लीड कोड इज गुड। आपकी इंटरव्यू बिट है, मतलब इंटरव्यू बिट का जो प्रैक्टिस सेशन है, अगर मैं फीड रिसोर्सेज की बात करूं, दैट्स आल्सो वेरी गुड। एक चीज और जो आपको करनी चाहिए वो शुड बी कि गिव सम कॉन्टेस्ट रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लीड कोड पे जाओगे ना, तो लीड कोड पे आपको वीकली कॉन्टेस्ट मिलते हैं। ओके, दोज आर वेरी गुड रिसोर्स। उससे आपको आइडिया हो जाएगा आप किस लेवल पे हो इस समय, आपकी किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप, राइट। इज योर रैंक इंप्रूविंग, इज योर रैंक डिक्रीजिंग, राइट। तो डू कीप गिविंग कॉन्टेस्ट एज वेल एंड स्टार्ट टू प्रिपेयर दैट। एक और चीज विच आई फील मेनी पीपल डू रॉन्ग इज कि वो प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। व्हेन दे सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड एक्सेट्रा, वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई विल सजेस्ट कि यार जब भी आप कोई भी एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्व करो, व्हेन यू आर इन द लर्निंग फेज, don't just end the problem once your code is submitted and getting a correct answer. In fact, take a pause. What I personally do is close your eyes and try to visualize ki why did that algorithm work, or what was that algorithm, how was that algorithm solving the problem. For example, okay, there was an array. That array had 5 elements. Okay, so I moved that element here. Why did I move that element here? I moved that element there because now it is in the correct position. Then I did that, etc., etc. You should be able to visualize an algorithm or visualize a solution to a problem, then only move to the next thing, because this will help you develop your mental models. For example, तो सर एक टीयर 3 कॉलेज से गूगल तक का सफर सर कितना डिफिकल्ट होता है या काफी इजी होता है? इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा सर। यार फ्रेशर के लिए तो डिफिकल्ट होता है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट है, ठीक है। लेट मी टेल यू व्हाई। मतलब मतलब गूगल या अगर किसी भी इस टाइप की कंपनी की बात करें, आई हैड अप्लाई टू दीज कंपनीज अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, एंड बहुत बार तो सीधा रिज्यूमे स्टेज पे रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। इवन आफ्टर रेफरल, ओके, मैंने बहुत बार रेफरल के साथ भी अप्लाई किया था एंड रिज्यूमे स्टेज पे रिजेक्ट हो गया था। तो आई विल से बहुत बार ना इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, या अगर मैं जैसे जूनियर्स की भी बात करूं, मैंने अपने जूनियर्स को भी जब रेफर किया था, वन ऑफ देम, और आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन अदर देन वन ऑफ देम, नेवर गॉट अ कॉल। कॉल ही नहीं आया, ठीक है, रिक्रूटर से। तो इवन आफ्टर अ रेफरल, ओके, तो a lot things matter यार। फ्रेशर के लिए हायरिंग में there is less proof of work that is there, okay। तो मतलब every company I will say tries to focus on some alternate metrics to see if they should interview you or not, right? Those metrics can be your good ranks in a competitive programming contest, these can be your good projects, these can be your active profile, etc., etc., right? तो आई थिंक मैं एक बार ना एक इंजीनियरिंग मैनेजर से बात कर रहा था एक स्टार्टअप के, तो उससे मैंने ये सिंपल यही क्वेश्चन पूछा था कि यार फॉर एग्जांपल उसकी स्टार्टअप में मैंने एक बार अप्लाई किया था, तो मैंने पूछा कि यार मतलब आई थिंक कि अगर आप मुझे मेरे रिज्यूमे को सेलेक्ट कर लेते उस समय, तो आई थिंक आई वुड हैव गॉटन एन ऑफर। ओके, तो उसने कहा द फैक्ट इज यस दैट इज ट्रू, बट द थिंग इज कि जब आप रिज्यूमे स्क्रीन कर रहे होते हो ना, आपके पास एक बंदे की ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अभी अप्लाई करो, तो मैं तुम्हारा रिज्यूमे पे कितना ही चेक कर सकता हूँ कि इस बंदे को इंटरव्यू पे लाना चाहिए या नहीं, राइट। तो what what most managers do is they try to rely on some alternate metrics,
ठीक है, some pseudo metrics to see क्या ये बंदा is it worth an interview or not, okay, especially for big companies, okay. तो वो ये जो सोचते हैं कि यार अगर अच्छा कॉलेज है तो प्रोबेबली देयर इज अ हायर चांस दिस पर्सन माइट बी एबल टू क्लियर एन इंटरव्यू, ठीक है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में अच्छा रैंक है या किसी एल्गोरिथम कॉन्टेस्ट में अच्छा रैंक है, देयर इज अ हायर चांस दैट द पर्सन विल क्लियर इंटरव्यू। बहुत अच्छी गिटहब प्रोफाइल है या बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, देयर इज अ हायर चांस दैट द पर्सन विल क्लियर एन इंटरव्यू। तो फ्रेशर पे ये होता है, द सूडो मैट्रिक्स आर यूज अ लॉट, ठीक है। तो इस कारण टीयर 3 कॉलेज के लिए थोड़ा सा डाउन साइड हो जाता है, क्योंकि कॉलेज का नाम नहीं है, तो आपके अगर जो मैट्रिक्स होंगे या तो वो आपके रैंक्स होंगे या वो आपके प्रोजेक्ट्स या गिटहब प्रोफाइल्स होंगी, राइट। तो मुझे लगता है कि फोर्थ ईयर में मेरे पास गूगल की कॉल क्यों आई थी, उसका एक रीजन ये था, उस समय मेरा आई थिंक किक स्टार्ट का रैंक अच्छा था। तो आई थिंक किक स्टार्ट के रैंक के कारण इट हेल्प मी गेट अ कॉल। इनफैक्ट जो मेरे जूनियर्स में से भी, इनफैक्ट ये भी एक्चुअली नॉट ट्रू है, क्योंकि उस किक स्टार्ट में मेरे साथ 2 जूनियर्स थे और दोनों जूनियर हम तीनों की टीम थी, तो हम तीनों का ऑब्वियसली रैंक सेम था। उन 2 जूनियर्स में से एक का हो गया था, एक को आ गया था कॉल, दूसरे को नहीं आया था, और जिसको कॉल आ गया था वो भी अभी गूगल में ही है। तो मतलब है रैंडम, मतलब आई विल स्टिल से कि लक इज डेफिनेटली इन्वॉल्व। तो एंड द रीजन फॉर दैट इज वही कि मतलब यार कंपनियों की भी गलती नहीं है। एक लार्ज स्केल कंपनी को तुम सोचो जिसमें हर साल शायद 50-60 हजार पता नहीं कितने लोग अप्लाई करते होंगे, अगर उनको रेज्यूमे स्क्रीन करना है, दे विल द बेस्ट ऑप्शन दैट दे हैव इज टू रिलाई ऑन सूडोमेट्रिक्स, राइट। तभी मैं फ्रेशर्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि better start with a startup, क्योंकि स्टार्टअप में there is a higher chance that you will at least get a call, and if you will get a call, if you are skilled enough आप निकाल सकते, okay, but once you have 2 years of experience or so, तब आपको ये बड़ी कंपनियां भी रीच आउट करने लग जाती हैं। once you have 2 years kind of experience at good companies, these companies will also companies like Google, Facebook, etc. will also reach out to you and they will be more than happy to consider you for an interview. सर जैसे आपने मेंशन किया आपने किक स्टार्ट में अपेयर हुए थे आपकी टीम, और सर आपने आईसीपीसी में भी रीजनल रैंक 137 अचीव करी है, तो उसके एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ कि किस प्रकार से आपका अप्रोच रहा इन थर्टी कॉन्टेस्ट के थर्टी लिए। सेवेंटी हाँ, रैंक 3070 137 थी। यस सर। तो यार अप्रोच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो जैसे अगर मैं बताऊं, ये वाला किक स्टार्ट हुआ था 2019 में, ठीक है, 2019 के दिसंबर के आसपास, ओके। तो इफ यू रिमेंबर उसी समय मैं इंटरव्यूज वगैरह की भी तैयारी कर रहा था, ओके। एंड एज आई मेंशन उस समय आई वाज सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, स्केलर का कोर्स हो गया, आपका लीड कोड का कोर्स हो गया, आपका कोड फोर्सेस में थोड़ी थोड़ी कर रहा था, ओके। तो व्हाट आई डिड वाज कि देयर वर 2 जूनियर्स जो मेरे साथी थे, साथ सेम अपार्टमेंट में रहते थे अपन लोग। तो हम तीनों ने इकट्ठे करना शुरू कर दिया था कि यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठे सॉल्व करेंगे, उनकी इंटर्नशिप की तैयारी हो जाएगी, मेरी फुल टाइम की तैयारी हो जाएगी, एंड धीरे धीरे इसकी भी तैयारी हो जाएगी। जस्ट टू गिव अ प्रिकर्सर, इससे 1 साल पहले भी हमने किकस्टार्ट में क्या कहते हैं दिया था, हमने आईसीपीसी किकस्टार्ट दिया था। उस समय हमारा रैंक शायद 2500 आया था, ठीक है। तो 1 साल पहले रैंक बस 2500 या 1700 इसके आसपास था। अगले साल दिया था तो हमारा रैंक, यार मुझे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट का तो याद नहीं, शायद वो 300 या 250-60 था, लेकिन हम रीजनल्स में भी चला गया था, वहां पे भी 37 के आसपास रैंक आया था, ठीक है। तो क्या आई थिंक व्हाट हेल्प देयर वाज, उस समय वी वर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो वी वर इन द फ्लो ऑफ एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। तो वन थिंग दैट डेफिनेटली हेल्प्स इज how frequent are you in practicing your problem solving skills, okay. तो we were doing a lot of practice and अपन लोग सभी फ्लो में थे। और एक और चीज जिसने हेल्प किया, हम तीनों का ना टीम वर्क बन चुका था, हम मतलब सेम अपार्टमेंट में थे, तो हमें आइडिया था किसके कौन से कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हैं या कौन किस कंसेप्ट के क्वेश्चन उठा सकता है। तो एक टाइप की चीज थी कि जैसे मेरा डीपी वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सीधा उठा लेता था। तो मेरा ये प्रोसेस थी कि मैं सीधा मीडियम लेवल वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, इजी क्वेश्चन वो जूनियर पकड़ लेंगे, ओके, इनिशियली। तो those kind of strategies also that we had developed over the past few months helped. बट एज सच कुछ हमने किकस्टार्ट के लिए अगर मैं बताऊं अलग से तैयारी नहीं की थी हमने, सॉरी आईसीपीसी के लिए हमने अलग से तैयारी नहीं की थी। आईसीपीसी में तो इट वाज मेजरली क्या कहते हैं कि उस समय हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे लीड कोड पे, इंटरव्यू पेज पे, अपने उस पे क्या कहते हैं कोड फोर्सेस पे, और बहुत ज्यादा कर रहे थे, मतलब वी वर इन वेरी गुड फ्लो। तो आई थिंक दैट हेल्प इन गुड गेटिंग गुड रैंक्स इन अपना क्या कहते हैं आईसीपीसी के ऑनलाइन राउंड में भी और उसके बाद रीजनल्स पे भी, ठीक है। किकस्टार्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग था। किकस्टार्ट इज एन इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट, राइट। तो आई थिंक किकस्टार्ट की जो मेरी प्रैक्टिस थी ना, तो किकस्टार्ट में आई हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि या मेरे
जो मतलब कोलीग्स थे उनसे भी मैंने ये सीखा कि किकस्टार्ट के क्वेश्चंस आर मोर ऑब्जर्वेशन इंटेंसिव। ओके, उनमें ना बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस होती है एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स एन इजियर क्वेश्चन टू सॉल्व। ओके, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए एज सच मैंने अलग से गूगल किकस्टार्ट के प्रीवियस राउंड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो गूगल किकस्टार्ट के अगर आप प्रीवियस राउंड के क्वेश्चन देखना चाहते हो और सोल्यूशन वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, ठीक है। तो व्हाट आई डिड वाज मैंने एक हैबिट रखी थी कि हर वीक आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ वन राउंड। जब मैं वो इंटरव्यू प्रैक्टिस भी कर रहा था ना, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा था, उसी के साथ साथ मैंने हर वीक एक गूगल किकस्टार्ट के राउंड के क्वेश्चंस करने का एम बनाया हुआ था। तो आई थिंक उससे भी थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया कि किस टाइप की क्वेश्चंस या किस टाइप के ऑब्जर्वेशन गूगल किकस्टार्ट में होती हैं। एंड आई थिंक दैट इज मेजरली दैट हेल्प। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक सच्ची बात बताऊं कि कोई भी टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्टेस्ट हो, बी इट आईसीपीसी, बी इट किकस्टार्ट, बी इट कोड फोर्सेस, बी इट कोड शेफ, बी इट लीड कोड, कुछ भी हो, ठीक है, आपकी कोई अलग से स्ट्रेटेजी नहीं होती। ओके, व्हाट मैटर्स इज हाउ स्ट्रांग योर फंडामेंटल्स आर, हाउ वेल डू यू नो योर डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, हाउ गुड आर योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, एंड मेजरली दैट्स इट। ओके, अगर आपके फंडामेंटल्स सही हैं, आप फ्लो में हो, आपने अच्छी खासी प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, आपका रैंक हर में अच्छा आ जाएगा। कोई भी अगर आपका नया प्लेटफॉर्म भी आ जाएगा उसमें भी आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक यार हर टेस्ट के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल्स रिमेन द सेम। ओके सर। सर आपने प्लेसमेंट्स के लिए या अपने रिज्यूमे में कोई प्रोजेक्ट मेंशन किए थे जिसने आपको काफी एक आउटशाइन करा तो दूसरों के मुकाबले? वो कुछ प्रोजेक्ट्स बताइए हमारे। यार एक प्रोजेक्ट जो बहुत अच्छा था वो था, क्या कहते हैं, मैंने ना एक कोलैबोरेटिव टेक्स्ट एडिटर बनाया था। तो हमारे कॉलेज में कोर्स था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का, ठीक है, ये था थर्ड ईयर में। तो उस कोर्स के लिए द प्रोजेक्ट दैट आई बिल्ट वाज अ कोलैबोरेटिव टेक्स्ट एडिटर। तो कोलैबोरेटिव टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, जैसे गूगल डॉक्स देखो तुम, गूगल डॉक में एक डॉक है, उसको 4-5 लोग इकट्ठे उस पर लिख सकते हैं, राइट, 4-5 लोग उस पर इकट्ठे देख सकते हैं, एक दूसरे का काम भी इकट्ठे उसको एडिट कर सकते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो ये मुझे बड़ी कूल चीज लगती थी। तो व्हेन आई वाज आई थिंक जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कोर्स था तो मैंने सोचा यार ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, एंड मतलब इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, सीआरडीटीज, ओटी एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, इसको सीखने में बड़ा मजा आया। इसके ऑनलाइन ब्लॉग्स अवेलेबल है, रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है, तो वो सब चीज पढ़ने में बड़ा मजा आया, इंप्लीमेंट करने में बड़ा मजा आया। इनफैक्ट इंप्लीमेंटेशन करते करते मैंने ना बहुत सारी कुछ ओपन सोर्स ऐसी लाइब्रेरीज हैं, मुझे अब नाम तो उनका याद नहीं, जो ये चीज इंप्लीमेंट करती हैं, सीआरडीटीज, ओटीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो उनका कोड देखा, समझा कैसे चलता है। तो इससे थोड़ा सा ना रियल स्केल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आइडिया हो गया कि रियल कोड बेस कैसा चलता है, रियल लाइफ कोड बेस कैसा होता है, क्योंकि उस समय तक मैंने उतना बैकएंड सिस्टम पे काम नहीं किया था। ओके, एंड इस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद, बिकॉज इट वाज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का प्रोजेक्ट, थोड़ा सा एचडी के कंसेप्ट्स भी लग रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बाद जो भी मैंने इंटरव्यू दिया, किसी ने अगर प्रोजेक्ट पूछा, दिस प्रोजेक्ट वाज टू बी वेरी ऑनेस्ट द वन दैट बिकेम अ हाईलाइट कि यार अच्छा, मतलब आपने उस पे ये किया, आपने उसको किस तरीके से आपने चैलेंजेस सॉल्व किए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोलैबोरेटिव टेक्स्ट एडिटर वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट एंड gave me a very good idea of how distributed systems work, etc etc. एक दूसरा प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है जो अच्छा था, जिसमें थोड़ा सा ना मेरा एमएल और डीप लर्निंग की भी नॉलेज यूज हुई, वो था मूवमेंट रिट्रीवल फ्रॉम वीडियोस। तो ये क्या था, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज सर्च करूँ कुछ यूट्यूब पे, अब अगर तुम कुछ भी यूट्यूब पे सर्च करते हो ना, फॉर एग्जांपल मैम स्माइलिंग, अगर आप ऐसा सर्च करोगे तो यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो रिकमेंडेशन ही आएगी, यूट्यूब उसके अंदर भी बता देगा किस मिनट से किस मिनट तक बंदा हंस रहा था, है ना। या अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना व्हाट इज समथिंग, तो वो सिर्फ वीडियोस आपको रिकमेंड नहीं करेगा, वो वीडियो के बीच का इंटरवल भी रिकमेंड करेगा। ओके, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो बनाना इम्पॉसिबल था कॉलेज में, तो बहुत इसका छोटा वर्जन बनाया था हमने, मतलब वी हैड अ वेरी स्मॉल सेट ऑफ टाइप ऑफ मूवमेंट्स दैट वी वांटेड टू गेस्ट। ओके, तो इससे मुझे ये एक्चुअली प्रोजेक्ट हमने बनाया था, देयर वाज अ कोर्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इन माय कॉलेज। ओके, तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज बेसिकली अबाउट हाउ सर्च इंजन्स वर्क, how do you index the websites, how do you index the databases, etc. तो उसमें मुझे बड़ा मजा आया कि यार वीडियोस कैसे इंडेक्स होती है। मेरा ये क्वेश्चन था कि टेक्स्ट इंडेक्स करना स्टिल एन इजियर प्रॉब्लम, बट वीडियोस कैसे इंडेक्स करोगे, बिकॉज वीडियो में बहुत सारी चीजें, इफ यू थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शंस, then you will probably have to analyze those actions and convert it into a text that you can later analyze. Okay, आप टेक्स्ट सर्च कर रहे हो, अगर आपके पास टेक्स्ट सर्च का एल्गो बना हुआ है, आप समझो अगर वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, ट्रांसक्रिप्ट बना दो उसकी, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो मैंने इस टाइप के यूनिक अप्रोचेस सोची थी उस समय। इट वाज मोर ऑफ अ थिंक यार ट्राई करते हैं, जस्ट हैविंग सम इनोवेटिव आइडियाज कि मैं वीडियो को कैसे सर्च कर सकता हूँ। मुझे पता नहीं था यूट्यूब भी उस पर काम कर रहा है उस समय। इनफैक्ट आई थिंक ये प्रोजेक्ट के आई थिंक 2-3 महीने बाद शायद गूगल ने वो फीचर लॉन्च किया था, मूवमेंट इन वीडियोस। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये चीज हो रही है। तो आई थिंक बट दिस प्रोजेक्ट आल्सो बिकॉज ये प्रोजेक्ट में ना इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से या एचएलडी कांसेप्ट से रिलेटेड है। तो आई थिंक दीस टू प्रोजेक्ट्स कंबाइंड गिव अ वेरी गुड आइडिया टू एन इंटरव्यू कि हाँ यार बंदे का इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बिल्डिंग सिस्टम्स में। नहीं सर, सर ये पूछना चाहूंगा कि कॉलेज में एक पीयर ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि ये आपको पूरे कॉलेज के दौरान में आपके साथ रहता है, किस प्रकार से आपको शेप करता है, उस पीयर ग्रुप का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए।
Yeah, actually, I will say peer group is very important. There is a quote ki, you are basically an average of the, I think the nearest 5 people that are around you. Okay, the nearest 5 people around you. कि अगर आप वही बन जाते हो, which is the average of the 5 people that are around you. So it becomes very important to decide what kind of people you want to have with you, what kind of people you don't want to have with you. Okay, some people are going to be very productive to your career, some people are going to be very destructive to your career. उनकी thoughts वगैरह. Okay, अब यार कॉलेज आई तो पहली बात ये भी नहीं होना चाहिए कि बड़ा वो बन गए कि यार इस बंदे को नहीं रखूंगा क्योंकि मैं इससे पढ़ नहीं पा रहा. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लोर. कॉलेज बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन के लिए भी होता है, बट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि किस टाइप के लोगों के साथ आप किस टाइप के एक्टिविटीज करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक आई हैड अ ग्रुप जिनके साथ मैं अपना आईसीपीसी वगैरह या कोडिंग का सब कुछ करता था, राइट. एंड आई हैड अनदर ग्रुप जिनके साथ मैं खेलने का सब कुछ करता रहता था टू कीप माई सेल्फ एक्टिव एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, व्हाट आई विल से इज whatever kind of people that you have with you, have people who have a growth mindset. Okay, they want to do something good. Okay, they want to grow in their life, they want to grow in their career, and they are always working to improve themselves and learn new skills, try new things. Okay, इससे क्या होगा, you will always have new things to learn from them. आप उनसे बात करोगे क्या कर रहे हो, बताएगा यार आज मैं ये कर रहा हूँ. अच्छा सही है, बताना ये चीज कैसे काम करती है या इस चीज को सिखाना. They will be very interested to help you grow with them as well. Okay, तो यार पीयर ग्रुप में व्हाट आई विल से इज कि मतलब ऑब्वियसली कॉलेज में जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, मतलब इसमें झूठ क्या ही बोलूंगा कि पीयर ग्रुप आधी टाइम तो टीचर्स खुद ही बना देते हैं, और मतलब जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें नॉर्मली एक ही बंदा काम कर रहा होता है. बट एटलीस्ट आउटसाइड द कॉलेज, the type of people you interact with always, for example, let us say अगर तुम्हें interviews crack करने हैं, try to get a peer group who is also trying to do the same thing. Okay, जिनका भी मन प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, because इवन मैं स्केलर में भी जब हम बात करते हैं ना कि व्हाट हेल्प पीपल अचीव आउटकम्स एट स्केलर, तो हम उसमें यही कहते हैं कि यार वी हैव बिल्ट अ कम्युनिटी ऑफ पीयर्स, कि यार इतने लोग हैं, आप एवरीवन इज नॉट पुशिंग यू फॉरवर्ड. अगर वो बंदे ये करें, आपका अपने मन होगा कि यार ये चीज मैं भी ट्राई करता हूँ. ठीक है, तो यू आर मोर लाइकली टू सक्सीड बिकॉज ऑफ दैट. ओके, तो इसके लिए कैसे, हाउ टू फाइंड अ पीयर ग्रुप. फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी ओपन. Okay, be very I mean like open to find people, open to interact with people. Okay, कि try to talk with people कि अच्छा तुम क्या कर रहे हो, because everyone has a story to share. हर बंदा कुछ ना कुछ तो कर रहा है. Then try to see which kind of people you relate with. Then be very open to start the things. Okay, कि चल यार ये चीज करते हैं, ये चीज करते हैं. Okay, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो मैंने कॉलेज में किए which were very random. नाइस सर. तो जैसे आपने बता दिया कि एक फ्रेशर को अपने स्यूडोमेट्रिक स्किल्स पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे फोकस करना चाहिए अगर उसे एक अच्छी इंटर्नशिप, एक अच्छी प्लेसमेंट क्रैक करनी है. तो सर एक ऐसा क्वेश्चन है सर कि अगर किसी को एंड्रॉइड डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपर बनना है फ्यूचर में, या वो कंपनीज क्रैक करनी है, तो किस तरह से स्टार्ट कर सकता है, उस बिगिनर की क्या अप्रोच होनी चाहिए? शायद सच्ची बताओ, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है अदर देन वो शिफ्टी में जो मैंने काम किया था. लेकिन एंड्रॉइड डेवलपर का मैं बताता हूँ मैंने कैसे सीखा था. एंड्रॉइड डेवलपर का एक तो ना बुक है कॉल्ड बिग नर्ड रैंच, वो बिग नर्ड रैंच की बुक है फॉर बिगिनिंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट. दैट वाज अ वेरी गुड बुक. ओके, उससे मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में कैसे काम करती है उसके बारे में आइडिया हो गया था. बाय द वे एक चीज मैं सभी को कहना चाहूंगा, देयर इज अ सब्सक्रिप्शन ऑफ एसीएम. अगर आप एसीएम की मेंबरशिप लेते हो ना, आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए दैट इज ओनली लाइक 1000-1500 रुपीज एन ईयर. उस एसीएम की मेंबरशिप के साथ आपको ना सफारी ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. ओके, उस सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या है, आपको ना जो भी बुक्स MIT प्रेस, पियर्सन, ओरियली, इन सब की जो भी बुक्स होती है उन सबका डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है फ्री में. ओके, तो मैंने वो लिया हुआ था. मैंने ये आई थिंक 2017 से लिया हुआ था. तो आई मतलब क्योंकि मैं तो बताया ना आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो मैंने लिया हुआ था. तो उसी पे मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट का सर्च किया, तो आई केम टू नो अबाउट अ कंपनी कॉल्ड बिग नर्ड रैंच. ओके, नाउ व्हाट इज दैट कंपनी? जहां तक मुझे आइडिया है, वो दैट कंपनी बेसिकली डज वर्कशॉप्स फॉर इंडस्ट्रियल कंपनीज. जब इंडस्ट्री में किसी कंपनी को एंड्रॉइड डेवलपमेंट सिखानी होती है, तो बिग नर्ड वाले क्या कहते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज को वो चीज सिखाते हैं. तो उन्होंने ना एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे भी बुक लिखी हुई है, तो मैंने वो चीज पढ़नी शुरू कर दी. यार उस बुक का जो सबसे बड़ा फायदा है ना, द टेक्निक्स दैट इट टीचेस इज वेरी मच इंडस्ट्री रेलेवेंट. कि किस टाइप को आपको पैकेज स्ट्रक्चर करना चाहिए, किस टाइप का आपको आर्किटेक्चर लेना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू समथिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, तो आई रेड दैट पर्टिकुलर बुक. तो एंड आई थिंक दैट विल गिव यू अ गुड स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ टू on what is Android development and how to do anything in Android. Okay, तो वन तो ये. अगर अब आपका बुक्स में मन नहीं है, I think there can be good Udemy
courses as well that must be there. Okay, so for everything I will say the very first thing is to build your skills. Okay, build your skills तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको कोई करके नहीं देने वाला, ठीक है। अब आप बुक से पढ़ो, आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ो, आप यूडेमी के कोर्स से पढ़ो, कहीं मर्जी से पढ़ो। ओके, मेरे लिए बेस्ट रिसोर्स बुक्स होती है, उसके बाद सेकंड बेस्ट रिसोर्स मेरे लिए यूडेमी के कोर्सेज होते हैं, और दीज आर ऑफन गुड इनफ। ओके, तो अब आपने स्किल्स बना लिया। अब द सेकंड थिंग इज यू नीड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के दो वेज है, एक तो आपके पास इंडस्ट्री हो सकता है और दूसरा हो सकता है आपके पास खुद का प्रोजेक्ट। ओके, इंटर्नशिप अगर आपको लेनी है, आई विल से कि यार नेवर बी शाई इनफ टू अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप एटलीस्ट एट अ स्टार्टअप। अगर तुमने अब एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख ली है, तुम्हें पता है कि हाँ यार मेरे पास स्किल्स है, जस्ट रीच आउट टू फाउंडर्स या अप्लाई फॉर दीज कंपनीज कि यार आई एम इंटरेस्टेड इन द रोल ऑफ एन एंड्रॉइड डेवलपर, आई नो दीज स्किल्स, ठीक है। एंड आई थिंक अगर तुम 20 कंपनी में अप्लाई करोगे ना, 3-4 में तो आ ही जाएगा कॉल आ जाएगा। ओके, कॉल आ जाएगा अगर तुम एक्सप्लेन करते हो, और अगर वो स्टार्टअप है, थिंग्स विल वर्क आउट। ओके, एंड दैट विल गिव यू अ वेरी गुड किक स्टार्ट इनटू दैट थिंग। ओके, इस एपिसोड का एंड करना चाहेंगे, लेकिन सर आप अगर एक एडवाइस अपनी देना चाहोगे फर्स्ट ईयर वाले नमन भल्ला को, तो वो क्या एडवाइस होगी, वो थोड़ा सा बताइए सर। फर्स्ट ईयर आए हो यार, एक चीज तो मैं कहूंगा जो अब मतलब टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर कि यार वो सही एडवाइस होगी या नहीं, बट एक एडवाइस जो मुझे होती है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ओके, मतलब एक ना मैंने प्रॉब्लम जो अपने पहले 2 साल में देखी है, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट आई नेवर वेंट इनटू डीप ऑफ अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स इन द वेरी फर्स्ट 2 years। मतलब क्या होता था, मैं हैप्पी न्यूज खोलता था, मैं प्रोडक्ट एंड खोलता था, कोई भी चीज कूल लगती थी मैं उसमें घुस जाता था, ठीक है। एमएल में घुस गया, फिर डीप लर्निंग में घुस गया, फिर कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में घुस गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो आई विल से कि यार उसके फायदे भी है नुकसान भी है। ओके, उसका एक फायदा ये है कि आज अगर मुझे किसी भी चीज पे बात करनी होती है, आई हैव अ ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट, जो कि मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी या उस समय किया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर डेप्थ की बात करें तो उन सब चीजों में उतनी डेप्थ नहीं हो पाई जो मैंने फर्स्ट 2 years में की थी, राइट। तो आई विल से डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, प्रोबेबली I mean probably don't dig multiple wells, I will say that will be one thing, and the second thing probably key ensure, मतलब I will not say as an advice to myself because I think यार ये चीज मैंने थोड़ी सी ठीक की थी, but for anyone अगर आज के सेशन है वगैरह कि यार have very strong fundamentals, okay, because they are going to be the base and the foundation for you। आपका करियर कितना स्ट्रांग होगा will depend upon आपके फंडामेंटल, आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। आपका करियर की बिल्डिंग उस फाउंडेशन के ऊपर खड़ी होगी, ठीक है। जो आपके कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स है ना, ये सब चीजें ये आपको बोरिंग लग रही हो सकती है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कभी ऑनलाइन देखोगे, आपको कभी ये चीजें कूल नहीं लगेंगी, ठीक है, बट दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू एक्चुअली गेट इन द इंडस्ट्री एंड व्हेन यू डीप डाइव इनटू समथिंग, ठीक है। तो दीज कंसेप्ट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बिल्ड वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, उसके बाद एक्सप्लोर करो, उसके बाद जाओ वेब डेव एक्सप्लोर करो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट एक्सप्लोर करो, मशीन लर्निंग एक्सप्लोर करो, ब्लॉकचेन एक्सप्लोर करो, सब करो एक्सप्लोर, बट एक बार फाउंडेशन जरूर बना लो, क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन ठीक नहीं होगी ना, तो आपको बाकी सब स्किल्स भी, बाकी सब टेक्नोलॉजीज भी अच्छे से इन डेप्थ समझ नहीं आएगी। ओके, अगर आपकी फाउंडेशन सही होगी तो आप इवन ब्लॉकचेन को आप इजीली रेजोनेट कर पाओगे कि अच्छा यार ब्लॉकचेन है क्या, ओके आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप ये चीज सॉल्व कर रहे हो, एमएल में क्या हो रहा है, आप चीज समझ पाओगे, ठीक है। तो आई विल से कि यार हैव वेरी स्ट्रांग फाउंडेशंस and don't distract yourself, okay, don't distract yourself into doing multiple things at the same time। एक चीज में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसको खत्म करो, उसके बाद आप सोचो कि अब मुझे क्या करना है, ओके। बिकॉज मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ जो अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर रहे हैं, बीएससी भी कर रहे हैं, मशीन लर्निंग भी कर रहे हैं, ब्लॉकचेन भी कर रहे हैं साथ में, और अब चारों में बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे, ओके। अगर आप डीएसए अच्छे से कर लोगे, एटलीस्ट डीएसए पे मैं ये कहता हूँ कि डीएसए आप एक बार अच्छे से करके खत्म कर दो, बिकॉज येस फॉर मेनी पीपल डीएसए कैन बी बोरिंग, आप एक बार करो, इसको खत्म कर दो, ताकि अब आगे आप चलो कि यार डीएसए तो हो चुका है, मेरी फाउंडेशन बन चुकी है, अगर मुझे कभी इंटरव्यू देना हुआ ना तो प्रैक्टिस करके 1-2 हफ्ता हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोर करना शुरू करो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टाइम। कूल, हैव अ गुड टाइम यार।